صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ضروری مسائل کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ نماز کے سنتوں کے تعلق سے بات چل رہی ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں نماز کے سنتوں میں سے 21 سنتیں مکمل ہیں، اس میں سے 11 سنتوں کا تذکرہ ہو چکا۔ آج کی اس ویڈیو میں باقی 10 سنتوں کا تذکرہ ہوگا۔ بارہویں سنت 5 وقت کی نماز میں قرات جو ہے وہ سنت کے مطابق کرنا۔ قرات سنت کے مطابق کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں پڑھے جانے والی سورتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک طوال مفصل، دوسرا اوساط مفصل، تیسرا قصار مفصل۔ یہ 3 حصوں میں سورتوں کو تقسیم کیا ہے۔ اب پہلی شکل جو ہے، پہلی سورت جو ہے طوال مفصل، ان میں کون کون سی صورتیں آتی ہیں؟ تو سنت میں یہی جو ہے بتایا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہے کہ فجر میں اور ظہر میں، نماز فجر یعنی فجر کی نماز اور ظہر کی نماز میں طوال مفصل پڑھنا ہے، یعنی کہ سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک 25واں پارہ حامیم، اس پارے کے اندر ایک سورت ہے سورہ حجرات۔ پہلی سورت سورہ احقاف، دوسری سورہ محمد، تیسری سورہ فتح۔ سورہ فتح ختم ہوتے ہی سورہ حجرات شروع ہوتی ہے، تو چوتھی سورت ہے 25ویں پارے کی چوتھی سورت سے سنت قرات شروع ہوتی ہے۔ کہاں تک؟ طوال مفصل سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج، اور یہ سورت جو ہے پارے عام میں ہے، یعنی 30واں پارہ، یہاں تک جو ہے فجر کی نماز اور ظہر کی نماز میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد اوساط مفصل، عصر اور عشاء میں سورہ طارق سے لے کر سورہ قدر تک ہے۔ سورہ طارق سے لے کر سورہ قدر تک یہ اوساط مفصل ہے، اور ان سورتوں کو عصر میں اور عشاء میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد یعنی کہ سورہ بینہ سے لے کر سورہ ناس تک یہ قصار مفصل ہے، ان سورتوں کو مغرب کی نماز میں پڑھیں گے۔ یہ قرات سنت قرات ہے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ 12ویں سنت قرات جو ہے سنت کے مطابق کرے۔ اسی طریقے سے 13ویں سنت رکوع اور سجدے میں 3 مرتبہ رکوع کی تسبیح اور سجدے کی تسبیح پڑھیں، کم سے کم 3 مرتبہ ہیں۔ 3 مرتبہ سے اوپر طاق عدد میں جتنے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، 5 ہے، 7 ہے، 9 ہے، 11 ہے، 13 ہے، جتنا بھی ہو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ پڑھنا انفرادی نماز میں، جماعت کے ساتھ کوئی امام نماز پڑھا رہا ہو اور وہ جو ہے 5 مرتبہ، 7 مرتبہ اور 9 مرتبہ، 11 مرتبہ پڑھ رہا ہو، تو یہ جو ہے مناسب نہیں ہے۔ پیچھے مقتدیوں کا خیال کرنا بہت ہی ضروری ہے۔
इमाम के लिए तो सिर्फ और सिर्फ 3 मरतबा या फिर जो है 5, इतना ही जो है गुंजाइश है, इसके अलावा की गुंजाइश नहीं। अगर कोई इनफिरादी तौर पे नमाज पढ़ रहा हो तो उसके लिए उसकी मर्जी ताक अदद में पढ़ना चाहिए, बेजोड़ अदद जितनी भी पढ़ ले। 14वीं सुन्नत, रुकू में सर और पीठ को सीधे रखे। रुकू में जब जाएं, सुन्नत यह है कि सर को भी और पीठ को भी सीधा रखें। ऐसा नहीं कि सर जो है झुका हुआ हो और पीठ जो है उठी हुई हो, या फिर जो है इस तरह रुकू कर रहा हो, तो ये सब जो है शक्लें सुन्नत के ख़िलाफ़ हैं। सुन्नत क्या है? सर और पीठ बराबर, ये सर और ये पीठ दोनों बराबर, इसको जो है सुन्नत कहा जाएगा। इसी तरीके से 14वीं सुन्नत में और 2 बातें बताई जा रही हैं। रुकू में सर और पीठ को बराबर रखना है, और उसके साथ साथ रुकू में जब जाएं तो अपनी उंगलियों को कुशादा रखे, इस तरह नहीं बल्कि इस तरह कुशादा चौड़ा करके उन उंगलियों से घुटनों को पकड़े, गुड़गे को पकड़े, ये सुन्नत है। 15वीं सुन्नत, कौमा में, यानी कौमा किसको कहते हैं? रुकू से उठकर जब खड़ते हैं उस हालत को कौमा कहा जाता है। तो कौमा में इमाम समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहे, मुख्तदी रब्बना लकल हम्द कहे, और इनफिरादी अपनी नमाज पढ़ने वाला उसके लिए दोनों कहना ज़रूरी है, तस्मीह भी और तहमीद भी। समी अल्लाहु लिमन हमीदा भी कहेगा और उसके साथ रब्बना लकल हम्द भी कहना है। इसी तरीके से सुन्नत 16वीं सुन्नत, सजदे में जाते वक्त, सजदे में जब जाने लगे तो उसका तरीक़ा क्या है? सुन्नत के बताया जा रहा है कि पहले घुटने रखे, यानी दोनों गुड़गे जो हैं ज़मीन पर रखे, उसके बाद दोनों हाथ, उसके बाद पेशानी ज़मीन पर रखे। ये तरीक़ा है सजदे में जाने का। ऐसा नहीं कि भाई पहले जो है हाथ रख लिया, बाद में जो है घुटना रख रहा है, बाद में पेशानी रख रहा है, या इसके ख़िलाफ़ और कोई तरीक़ा। तो ये तमाम तरीक़े सुन्नत के ख़िलाफ़। सुन्नत क्या है? सुन्नत तरीक़ा यही है कि सजदे में जाते हुए पहले अपने दोनों घुटने रखें, उसके बाद दोनों हाथ, उसके बाद पेशानी। ये इसी तरीके से 17वीं सुन्नत, जलसा और कायदे में, यानी जलसा किसको कहते हैं? दोनों सजदों के दरमियान जो बैठा जाता है उसको जलसा कहा जाता है, और कायदा अत्तहियात में बैठने को। तो ये 2 हालतों में बैठने का तरीक़ा क्या है? सीधा जो पैर है उसको खड़ा करेंगे, खड़ा करके उसकी उंगलियां क़िबले की तरफ इस तरह करेंगे, और बायां पैर जो है बिछा देंगे इस तरह। ये तरीक़ा है। सीधे पैर की जो उंगलियां हैं वो क़िबले की तरफ हों, पैर सीधा पैर खड़ा रहे और उंगलियां क़िबले की तरफ हों, और बायां पैर यानी डेवा पैर जो है बिछाकर उसके ऊपर बैठे। और इसी तरीके से दोनों हाथ रानों के ऊपर रहे। ऐसा नहीं कि दोनों हाथ, बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि तशहुद में कैसे बैठते हैं कि घुटनों को पकड़ लेते हैं, गुड़गों को पकड़ लेते हैं। ये तरीक़ा नहीं है सुन्नत तरीक़ा। सुन्नत तरीक़ा कौन सा है? रानों के ऊपर हाथ रखे। इसी तरीके से मसला जो है जहन में आया है तो इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। वैसे तो सुन्नतों का तज़किरा हो रहा है, लेकिन मुनासिब है इस मौके से कि वो मसला बयान करूँ। बहुत सारे हजरात जो है चेयर पर बैठकर, कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़ते हैं, तो नमाज जब क़ियाम उनका होता है, रुकू में जब जाते हैं तो इस तरह जो है, यानी कि हाथों को
घुटने से आगे लेके चले जाते हैं इस तरह, तो इससे रुकू नहीं हो सकता। रुकू करने का तरीक़ा क्या है कि बैठकर अगर नमाज पढ़ रहे हैं, यानी कि चेयर पर बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो क्या करे, अपने हाथों को रानों के ऊपर रखकर ही रुकू करे। इस तरह, ऐसा नहीं इस तरह सामने रखकर रुकू करेंगे तो रुकू नहीं हो सकता। तो इस मसले का जो है ख़ास ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि कायदे में, यानी कि जलसे में या कायदे में बैठने का तरीक़ा क्या है कि सीधे पैर को खड़ा करें और उसकी उंगलियों को क़िबले के तरफ रखें और डेवे पाँव को, उल्टे पाँव को, बायां पाँव जो है उसको बिछाकर ज़मीन पर उसके ऊपर बैठे और उसके साथ साथ दोनों हाथों को अपने रानों पर रखे। घुटनों के ऊपर नहीं रखना, घुटनों को नहीं पकड़ना चाहिए। इसी तरीके से 18वां अदब सुन्नत, 18वीं सुन्नत तशहुद में, यानी अत्तहियात में जब बैठते हैं, अत्तहियात पढ़ना शुरू करते हैं तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह जब आए तो वहाँ जो है शहादत की उंगली उठाए, अशहदु अल्ला इलाहा, ये जो है यहाँ पर उंगली उठाए। और इसी तरीके से 19वां सुन्नत कायदे आखिरा में तशहुद के बाद दरूद शरीफ पढ़े। अत्तहियात पढ़ लिया, अत्तहियात मुकम्मल हो गई, उसके बाद दरूद शरीफ पढ़ना भी सुन्नत है। 20वां सुन्नत दरूद के बाद दुआ पढ़े, दुआए मासूरा, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, ये जो है दुआ है, इसको दुआए मासूरा कहा जाता है। तो दरूद शरीफ के बाद इस दुआ को भी पढ़ें। और आखिरी सुन्नत 21वीं यानी 21वीं सुन्नत जो है वो सलाम फेरने की सुन्नत है। सलाम फेरने का सुन्नत तरीक़ा, पहले जो है दाएं तरफ सलाम फेरे, उसके बाद बाएं तरफ सलाम फेरे, सीधे तरफ पहले और उसके बाद डेवे तरफ। ऐसा नहीं कि अगर कोई आदमी जो है डेवे तरफ सलाम फेर कर सीधे तरफ बाद में सलाम फेर रहा है, यह अमल उसका सुन्नत के ख़िलाफ़ है। तो ये जो है मुकम्मल 21 सुन्नतें हुई हैं, जिनका मैंने आप हज़रात के सामने 2 वीडियोज़ के ज़रिए से आप हज़रात के सामने रखा है, इसका तज़किरा किया है। तो नाज़रीन से गुजारिश है कि नाज़रीन जो है ये जो सुन्नतों का तज़किरा हो रहा है, नमाज के सुन्नतें जो आपके सामने बयान की जा रही हैं, इन सुन्नतों को महफूज करने की कोशिश करें और इसके मुताबिक अपनी नमाज को मुकम्मल करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को इन मसाइल के ज़रिए से अपनी इबादतों को मुकम्मल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।